Okay, students, in today's class, we will go with the what? Heating effect of electric current. Okay, right? What? Heating effect of what? Electric current. So we all know that when the electric current flows in the conductor, okay, resistance is the force which opposes the current. Yes or no? थोड़ा सा कम कर लेंगे. Yes. So resistance और थोड़ा कम. Okay, can you hear now? So resistance is the opposing force which opposes the flow of current. Because resistance is the opposing force, and what is current flow of charges? They are both like this, right? Opposite. Because of this, heat is produced. That's the reason when you see fan चलते चलते टच करके देखो क्या हो गया, वो हीट हो गया. यस सर नो. अगर किसी वायर में हाई करंट फ्लो हो रहा है तो वायर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है. यस सर. अगर वही चीज ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. वायर के ऊपर जो इंसुलेशन है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हीट मेल्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? इन द लास्ट क्लास मेनी थिंग आई टोल्ड यू अबाउट दिस. इन टुडेज क्लास सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट इसका पढ़ाएंगे. सो व्हाट एवर आई एक्सप्लेन यू, इफ यू टॉक अबाउट दी फार्मूलेज, कौन से फार्मूलेज पहले पढ़ चुके हैं. सो आई इज इक्वल टू व्हाट, Q by T, then V is equal to W by Q, right? V is equal to W by Q. So then V is equal to IR we have studied. Now listen, by the help of this one, can we make W is equal to V into Q? Yes or no? Yes, correct. So what is work here? Work is a form of energy. Similarly, heat is also a form of energy. So even work and heat, both units are what? Joules. Are you getting it? So in the place of W, I'll write H. H is equal to V into Q. So H is equal to, in the place of V and in the place of Q, can I write I into T? Yes, so it becomes VIT. Yes, correct? I have the formula Ohm's law. V is equal to IR. Substitute V is equal to IR in this formula. It becomes H is equal to, so V, okay, V की जगह मुझे लिखना है IRIT, right? It becomes what? I square RT. इसी को बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. क्या बोलेंगे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. Okay, so Joule's law of heating states that the heat produced in the conductor is directly proportional to square of current. Okay, heat is directly proportional to resistance. Heat is directly proportional to time. If resistance increases, heat increases. Time increases, heat increases. I increases, heat increases. Okay, this is what Joule's law of heating. Apart from this, there is something called power here. Yes. So what is the definition of power? I made you to write rate at which work is done. So we'll write rate at which work is done. Yes or no? Work is done. So what we have written, power P is equal to W by T, rate at which work is done. Correct? Yes. Now in the place of W, can I write what? V into Q. So I'll write P is equal to V into Q divided by T. So we have Q by T, right? We know that Q by T is equal to what? I. So I can write P is equal to V into I. So this becomes my formula of power. By the help of Ohm's law, this is my Ohm's law, right? Yes or no? By the help of Ohm's law formula, I can change the formula of power. I can write the power in terms of R and in terms of V. Now presently it is in terms of V and I. Yes or no? So in the place of V, can I write IR? So it becomes what? T is equal to, in the place of V I have written IR. So IRI, it becomes I square R. This is the another formula of what? Power. Similarly, if I take what? I value becomes V by R. So P is equal to, I have VI. So in the place of I can write what? V divided by R. So V into V by R. So it becomes V square by R. So my power, another formula of power is what? V square by R. Remember,
unit of power is watt. What is the unit of power? Watt. W-A-T-T, watt. Okay, W-A-T-T, watt. So what is 1 watt? Okay, you can say 1 volt into what? 1 ampere gives you what? 1 watt. 1 volt into 1 ampere will give you the 1 watt. Watt is the what? Power unit of SI unit of power. Then apart from this, we'll go with the problems what we have. So which we have solved in our last class also. Today's class I'll be little bit faster so that you can. We have solved it right already. 12.10 and 12.11. We have solved in the class. Yes. So because we have that already solved in the class, आज की क्लास में क्या करेंगे? एक बार करा दूं इसको, because it is not recorded, record हो जाएगा. Okay. Example 12.10. Okay, I'll go with what? 12.10. So if you read the question, read out what it is. See, an electric iron consumes energy at the rate of 840 watts. So what they are giving? They are giving the power, because I told you watt is the unit of power. It is how much? 840 watt. Okay, 840 watt. Okay, when heating is at maximum, and 360 watt. So another power they have given 360 watt when the heating is at minimum. So it is at maximum and it is at minimum. They are talking about the iron. As I told you, in the iron there is one button, right? Maximum minimum करने का round सा क्या होता है? Button होता है. Yes or no? उसी के बेस पर ये दिया गया है. When the heating is at the minimum, the voltage is 220 volts. What is the voltage? 220 volts. What are the current and the resistance in each cases? So make it two cases. It becomes P1, it becomes P2. Sorry, they are asking what? Current. Current when the heating at maximum, that is I is equal to question mark and R is also equal to question mark. Same thing here, I is equal to question mark, R is equal to question mark. Because we have given the number 1 and 2, I can give here also number 1, 1, 2, 2. V remains same. V is not changing it. Okay, घर का जो voltage supply है वो same होता है, right? Any doubt? So which formula? So I have P and V. I need I. Can I use this one? I have V, I need V, P or V है, I चाहिए. So I'll take this formula. P is equal to V into I. So I use 1, P1, I1. V is both, V is same for both, right? So no need to give any number. I need I1. So I1 becomes what? P by V. P कितना है? 840. V कितना है? 220. लास्ट क्लास सॉल्व किए थे इसको, देखो कितना आंसर आया है. ओके, so we have 11 2 से डिवाइड किए तो 42 by 11 बचा, तो 42 by 11 कितना आया था आंसर? 3.81 ampere. Similarly, I2 becomes what? I2 becomes P by, okay, P by V. So here I'll write P1. So it becomes P2 by V. So P is how much? 360 divided by what? 220. 0 gets cancelled. Okay, कितना बचा था? Okay, 2 11s are 2 18s are. So 18 by 11 था. 18 by 11 answer will be 1.63 ampere. So see, जब okay पावर कितना था? 840 watt. तो करंट कंज्यूम हो रहा था 3.81 एम्पियर was the current. पावर कम कर दिए, 360 कर दिए, तो करंट भी क्या हो गया? कम हो गया. आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टूड? सिमिलरली देखो यहाँ पे करंट कहाँ पे ज्यादा है? इधर ज्यादा है ना करंट, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा, कम होगा? व्हाट इज द फार्मूला? I is equal to V by R. Yes or no? I and R were inversely proportional. करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. करंट कम है तो रेजिस्टेंस. तो ओवरऑल वो आयरन में क्या होता है? रजिस्टर होता है, सॉरी क्या होता है? रिवर्स स्टार्ट होता है, जो क्या करता है? रेजिस्टेंस को
इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है बेस्ड ऑन दैट द व्हाट आयरन इज वर्किंग. व्हाट इट नाउ in both the cases by the help of v is I is equal to v by r or r is equal to what v by I you can find out what. चलो फाइंड आउट करते हैं इधर फर्स्ट केस में. इसको मैं ऐसे कर देता हूं. ओके फर्स्ट केस में r इज इक्वल टू v बाई आई. v कितना है 220, i कितना है 3.81. यस सर नो. So you can solve this by the help of point shifting. तो नीचे से 2 बार पॉइंट शिफ्ट होगा तो ऊपर भी 2 मरतबा पॉइंट शिफ्ट होगा. उसके बाद क्या कर लो डिवाइड कर लो. या फिर सी लिसन हियर 3.81 दिया है ना. 1 is a odd number. Overall it is after the point. We can make it 2. Otherwise make it 0. 3.80 का भी आंसर लगभग क्या होगा अप्रोक्सीमेटली फाइनल आंसर के नियरेस्ट आंसर होगा. तो दे विल नॉट कट द मार्क्स. ओके आर यू गेटिंग इट. सो यू कैन कन्वर्ट इट एज 2.220 डिवाइडेड बाय 3.80. ओके तो उसमें आंसर देख लो आंसर मिल जाएगा. पॉइंट शिफ्टिंग से सॉल्व कर सकते हो. सिमिलरली इधर r1 हुआ ये r2 क्या होगा यहाँ पे v बाई आई और v कितना है 220 i1 I will write i2 so it becomes 1.63. okay leave it. Okay, this 63 can be converted to what 62 or 64. Anything you can convert it. Are you getting it? Because 3 is a odd number, convert it to even number so that the division becomes easy for you and answer में ज़्यादा changes नहीं आएंगे. Okay, so like that you can solve it. So I will write 220 divided by 1.62. We'll get the answer. Okay, any doubt in this? Copy down first. So now after this I'll rub this part. You have copied now? Not yet. The one who did not, don't worry. When it will be uploaded you can take it from there. So let's see when I'll upload. Okay, we'll go with the 12.11. 12.11. See the question. 100 joules of heat is produced. 100 joules of heat means what they have given? H is equal to 100 joules. Correct? Each second means they have given time. Time is how much? 1 second. Correct? In 4 ohm resistance, R they have given how much? 4 ohms. Find the potential difference across the resistor. V is equal to question mark. Now which formula I have to use? See, I have H, T, R and V. So listen here I have one formula H is equal to I square RT, but I don't have V here, but I can find what I. By the help of I using Ohm's law I can find what V. So I'll use this formula H is equal to what I square RT. I need I here. Yes or no? So H they have given, R they have given, T they have given. What I need? I. ओके आई को चाहिए तो आई को क्या करेंगे अलोन अकेले करेंगे तो आर टी को उधर भेजेंगे. क्या होगा एच डिवाइडेड बाय आर टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर. आई कैन राइट इन दिस फॉर्म आई स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाय आर टी. करेक्ट? एनी डाउट? सो एच इज हाउ मच 100, आर इज हाउ मच 4, टाइम इज हाउ मच 1. 100 by 4 becomes 100 by 4 25. yes or no? 100 के 4 हिस्से करो 25 मिलेगा ना. तो मुझे आई चाहिए. यहाँ पे क्या है स्क्वायर को उधर भेजो. क्या होगा रूट होगा रूट ऑफ 24. तो आई बिकम्स हाउ मच 5 एम्पियर. करेक्ट? मिल गया आई की वैल्यू. नाउ आई हैव आई एंड आर. कैन आई फाइंड वी यूजिंग ओम्स लॉ फार्मूला? V is equal to IR. So V is equal to I is 5 into R how much? 4. Yes, V is equal to 5 4s are 20 volts it will be, right? So this is the answer of the question example 12.11. Okay, any doubt? Turn the page now. Turn the page. What is the heading now? Practical application of heating effect of heating effect मतलब as I told you heat होगा, right? Current
जब फ्लो होगा तो क्या होगा, हीट होगा। तो लिसन हियर, इमेजिन करो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैटरी ले आऊं दिस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया हूं, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस रेजिस्टेंस को अगर मैं बढ़ा दूं का मतलब क्या, इंक्रीजिंग। सी सिंबल कैन नॉट बी इंक्रीज, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, बस इतना। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज्यादा करेंगे और कम रेजिस्टेंस होगा तो कम करेंगे, नो, इट इज जस्ट व्हाट, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, ओके, इट इज जस्ट अ सिंबल। सो इफ आई इंक्रीज द रेजिस्टेंस, हीट विल आल्सो इंक्रीज। सो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, क्या करेंगे, ज्यादा हीट कर देंगे, ज्यादा रेजिस्टेंस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, राइट। इसके नीचे एक प्लेट लगा दो तो प्लेट भी गर्म हो जाएगा, यही बन गया तुम्हारा क्या, आयरन। समझ में आया। इसी को कॉइल बना दो, पानी में डाल दो तो इसका पूरा हीट कहाँ चला जाएगा, पानी में, तो वो बन गया हीटर। हीटर, गीजर, आपके बाल के स्ट्रेटनिंग के जो डिवाइसेस होते हैं हीटिंग के, ओके, स्ट्रेटनर, ऑल दीज आर व्हाट, हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में कैसा होगा बोलो, इधर ऐसे, ओके, और यहाँ पे क्या कर दिया बोलो, फैन लगा दिया, यहाँ से क्या एयर निकल रहा है, यहाँ पे छोटा फैन है तो फैन बाहर का एयर अंदर पास कर रहा है, उधर क्या है, कॉइल है, तो एयर लगेगा कॉइल में तो एयर हो जाएगा क्या, गर्म, हॉट एयर बाहर निकलेगा, बस यही बन गया तुम्हारा क्या, हेयर ड्रायर। आर यू गेटिंग इट, अंडरस्टूड। सो दिस आर अबाउट व्हाट, दिस आर ऑल क्या होता है ये, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ और दिया है, यस, बल्ब के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दिया है। तो बल्ब इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाउ, बल्ब के अंदर ये फिलामेंट होता है, डिड आई लास्ट क्लास ये पढ़ाया था, नो, बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट को बोलेंगे टंगस्टन। किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। ये बल्ब है और ये कंप्लीटली सील्ड होता है, ओके, ये वायर है, आर यू गेटिंग इट, इनसाइड इट एक्चुअली बल्ब काम कैसे करता है, अभी जो ये है ना, ये एलईडी है, एलईडी टोटल डिफरेंट है, इट इज लाइट एमिटिंग डायोड, ओके, एलईडी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, बल्ब। बल्ब का कॉन्सेप्ट ही अलग था, कैसे, बल्ब में देखो यहाँ से बैटरी लगा दी है तो बैटरी से क्या जाएगा, करंट फ्लो होगा, और यहाँ पे टंगस्टन है, उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, रेड हो जाएगा, यस सर नो, रेड हॉट। और अंदर गैसेस होते हैं, हीलियम, सॉरी, आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस। कौन से, आर्गन और नाइट्रोजन गैसेस होते हैं। तो ये गर्म होगा तो अंदर का गैस भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हॉट गैस विल प्रोड्यूस लाइट, ये गर्म ऑर्गन जो है क्या एमिट करता है, लाइट एमिट करता है, तो यहां से क्या निकला बोलो, लाइट निकला, दिस इज द प्रिंसिपल। एनी डाउट, ओके। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप इसको ब्रेक कर दें, किसको, बल्ब को, ये ब्रेक नहीं हुआ है, वो विद इन 1 मिनट या 30 सेकेंड में ब्रेक हो जाएगा फौरन। वाई, वो गैस से क्या हो रहा था, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ब्रेक कर देंगे, अभी करंट पास करूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा फौरन, जल जाएगा वो, मतलब जल जाएगा मतलब ब्रेक हो जाएगा, ज्यादा हीट होके ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्यों ऐसे होगा, गैस क्या करता था, गैस वाज एमिटिंग लाइट, गैस इसको, इसके ऊपर क्या इफेक्ट डालता था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ गैस ऑन टंगस्टन, हीट, नो, माय क्वेश्चन इज, पहले गैस था ना इसमें, तो वो प्रोटेक्टेड था, कैसे प्रोटेक्टेड था, वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो गैस है वो क्या करेगा, हीट डिक्रीज है, वो कूलिंग गिलिंग का भूल जाओ, वो आंसर नहीं है, हाँ, यस, नहीं,
Listen here, this argon and nitrogen. Argon is a noble gas. Nitrogen is a gas which is a non-reactive. Yes or no? Argon is also noble. Noble gas are inert gases. Inert means what? Non-reactive gases. These gases does not react with tungsten. Okay, when we break up, अब जो ऑन होगा तो इधर क्या है, कोई नहीं तो एयर है, राइट? एयर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन. तो टंगस्टन रिएक्ट करेगा किसके साथ? बन जाएगा टंगस्टन ऑक्साइड. मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड. अब मेटल ऑक्साइड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, फौरन ब्रेक हो जाएगा. तो ये टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए जब ये बल्ब के अंदर है? तो इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेल्ट नहीं होना चाहिए वो. यस सर नो? तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट दिया है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में. तो इट इज ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस. डिग्री दे हैव मिस्ड, राइट डाउन देयर. 3380 डिग्री सेल्सियस. ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है. तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बोलो. हाई मेल्टिंग पॉइंट. ओके, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? वेरी वेरी हाई. इट इज अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस. क्लियर? एनी डाउट? ओके, नो. तो ये एक एप्लीकेशन हुआ हीटिंग इफेक्ट का. ये सर नो, ये टंगस्टन हॉट हो रहा है, उसकी वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है. एक और एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का, वो है फ्यूज. क्या है? फ्यूज. व्हाट इज ए फ्यूज? इट इज ए डिवाइस. वो कौन सा डिवाइस है, ये टॉपिक समझेंगे तो समझ में आएगा. फ्यूज पता है? फ्यूज, हैव यू सीन द फ्यूज? वेयर? बोलते हैं फ्यूज उड़ गया, वो आदमी के फ्यूज ना उड़ गए. ठीक है, मैं डराते ही फ्यूज ना उड़ गए उसे. ये फ्यूज, फ्यूज का माना क्या होता है? बोलो तो. एटलीस्ट यू हैव सीन द फ्यूज. द वन हु टोल्ड यस, रेज योर हैंड्स. कहां पे देखे? खंबे में, मीटर के पास है. घर के मीटर के पास इतना पोर्सिलिन का होता है, राइट? व्हाइट कलर का पोर्सिलिन. बोले तो चाय में कप पीते, कप में चाय पीते नहीं, वो कप वाला मटेरियल, उसे पोर्सिलिन बोलते. समझ में आ रहा है? देखो वो मटेरियल से बनकर रहता है. बैठ जाओ, बैठ. ओके. कभी कभी हाई वोल्टेज करंट गए तो उसमें भी रहती है, ऊपर लगा को गोल गोल पोर्सिलिन के. ओके, समझ में आ रहा है? तो फ्यूज इतना भी नहीं समझ में आया तो इफ यू डोंट, अगर पे नहीं करेंगे बिल, इफ यू डोंट पे द बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, केईबी वाला क्या करता? बोलो, फ्यूज निकाल के चला जाता, राइट? उसे फ्यूज बोलते. सो निकाल को जाता नहीं. अब मालूम हुआ? ये सर नो? अब तो मजा से मजा है, करंट फ्री हो गया. क्या बोले? नहीं हुआ करंट फ्री कि जो मिल रहा है वो खा रहे नहीं. अभी परेशान है कब तक मिलता कि नहीं मिलता. अभी मिल रहा, अभी एंजॉय करो, जब नहीं होता तो देख लेंगे. समझ में आ रहा नहीं? कल की फिक्र देखो कितनी है. क्या बोल रही? नहीं मिलता कहते ज्यादा दिन. जब नहीं मिलता तब बात के बाद. अभी तो मिल रहा नहीं प्रेजेंटली. फिर कल की फिक्र बहुत ज्यादा. ओके, तो अभी फ्यूज का काम बताता हूं, देख लियो फ्यूज काम कैसा करता है. तो इमेजिन करो ये घर है, हम लोग सब बनाते थे ऐसा घर, राइट? करेक्ट नहीं? और इधर क्या रहता था? गार्डन रहता था, प्लेस रहता था. तब खाबा में चाहिए. अभी एक घर 2 BHK मिल जाए रहने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, राइट? तो अभी खाबा का घर नको, गार्डन सब नको, घर ही है समझे, छोटा सा झोपड़ा बना देंगे. तो इधर क्या होता है? लाइन है, करंट है. ओके, खंबे का जो वायर है नहीं, तो वहां से या तो डायरेक्टली घर में होता है तो जमीन से आता है. इन बोथ द केसेस अभी डायरेक्टली लेकर समझा रहा हूं. वायर आ रहा है और यहाँ पे होता है मीटर. मीटर से करंट जाएगा कहाँ? घर पे. एक वायर जाएगा, लाइव वायर. लाइव वायर में करंट पास होता है. और यहाँ पे होता है फ्यूज. फ्यूज से मीटर, मीटर से घर. समझ में आ रहा? पहले करंट जाएगा कहाँ पे?
फ्यूज, लैब वायर पहले एंटर होगा फ्यूज में। ओके, समझ में आ रहा है ना। फ्यूज के अंदर क्या होता है, फ्यूज वायर होता है। फ्यूज के अंदर क्या होगा, एक फ्यूज वायर होगा। इमेजिन करो ये फ्यूज को निकाल देंगे तो इट बिकम लाइक दिस। तो कनेक्शन क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, राइट। तो सर्किट ब्रेक हुआ तो अभी पावर नहीं जाएगा, यस सर नो। अब करंट फ्लो होने के लिए फ्यूज को फिर इंसर्ट करना पड़ेगा। फ्यूज के अंदर जो वायर होता है, ये वायर कनेक्ट करेगा दोनों वायरों को। कौन से वायर को, घर के वायर को और ओके पोल से जो आता है ना उस वायर को। समझ में आ रहा है, एनी डाउट। अभी हमारे घर में जो अप्लायंसेस है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल फैन है, फ्रिज है, टीवी है, ये सब ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो 220 वोल्ट्स में अच्छे से क्या करे, काम करे। 220 टू 240, ओके, ज्यादा 250 60 उतना वो झेलेगा। समझ में आ रहा है ना। ये डिजाइन ही ऐसे किया गया बिकॉज इन दी कंप्लीट और इन इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो कितना है, 220 टू 240 के बीच में ही सप्लाई होता है। समझ में आ रहा है। तो यही बेसिस पर ये सब डिवाइसेस बनाए गए हैं। लेकिन समटाइम क्या हो जाता, अब्रप्टली हाई करंट अगर आ गया, ये कब होता है, यूजुअली पावर कट जब होता है ना, पावर कट होके जब पावर आता है तो समटाइम्स इट हैपेंस पावर इंस्टेड ऑफ 220 वी गेट हाउ मच, 440। अगर 440 आया, अगर घर के अंदर एंटर हो गया तो जो भी चीज ऑन था क्या हो गया, बोलो, सब खराब हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों, बिकॉज दे हैव डिजाइन टू वर्क within 220 to 240 now we are giving how much, समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टूड। तो इसको बचाने के लिए फ्यूज करें, बिकॉज जब हाई करंट आएगा तो पहले कहां जाएगा, वो फ्यूज में। ये जो फ्यूज वायर है ना, क्या होता है बोलो, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला हाई रेजिस्टेंस, इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और दूसरा लो मेल्टिंग पॉइंट, बोलो जब हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज वाला करंट, करंट हाई करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें, राइट। फ्यूज वायर के अंदर पहले से रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो जैसा ही हाई रेजिस्टेंस हुआ तो हीट ज्यादा हुआ, हीट ज्यादा होगा तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही मेल्ट होगा ये क्या होगा, ब्रेक, तो हाई करंट फ्लो नहीं हुआ घर पे। समझ में आ रहा ना। तो सारे घर के डिवाइसेस क्या हो गए, सेफ हो गए। सर फ्यूज वायर चला गया, नो प्रॉब्लम, 5-10 रुपए का फ्यूज वायर मिलता है, लाके लगा लो, बस 5-10 रुपए के स्पेंड से ओके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बिकम सेफ। समझ में आ रहा ना, एनी डाउट। तो ये है फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर का ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं मालूम, जब केईबी वाला वो लेके जाता है ना, बिल नहीं बनोगे तो निकाल के लेके जाते हैं, तो क्या कर देते हैं बोलो, एक छोटा सा वायर लेते हैं, यहां से यहां कनेक्ट कर देते हैं। कौन सा वायर, कॉपर वायर, करंट तो आ जाता है, लेकिन फ्यूज का जो वर्क था, पर्पस था, वो पर्पस नहीं हो रहा। अचानक हाई करंट आया, सब गया घर का। समझ में आ रहा ना। फ्यूज का पर्पस वो नहीं है कि बिल नहीं बनेंगे तो निकालेगा, नहीं, ही इज टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट। आर यू गेटिंग इट। असल पर्पस क्या है उसका, कि अब्रप्टली हाई करंट अगर जब कभी भी आए तो उससे घर में कोई नुकसान ना हो। ओके, एनी डाउट। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज वायर, एनी डाउट। अच्छा सर, वो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें हाई करंट होता है तो उसका फ्यूज वायर डिफरेंट होता है। घर का जो फ्यूज वायर होगा वो 3 पतला सा होगा, फैक्ट्री का जो फ्यूज वायर होगा जिसमें 440 वोल्ट्स लेते हैं वो लोग, तो उसका फ्यूज वायर क्या होगा, अच्छा थिक होगा। फ्यूज वायर में चेंजेस होते हैं। इफ यू गो टू द नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी शॉप टू टेक द फ्यूज वायर, दे विल आस्क कितने एम्प का चाहिए, 1 एम्प का चाहिए, 2 एम्प का चाहिए, 3 का चाहिए, या 4 एम्प का, या 5 एम्प का, या 10 एम्प का, 12 एम्प का। डिपेंड होता है कि तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं वो कितने एम्पियर में काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू सेलेक्ट ए व्हाट फ्यूज वायर। एनी डाउट। आई गिव यू वन एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं फिर समझेंगे। यू राइट डाउन दिस वन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज वायर, what it is, high resistance and low melting point. Remember, characteristic of fuse wire should be what, high resistance and low melting point. Imagine voltage 220 volt we have,
ओके, और वोल्टेज 220 वोल्ट है। इमेजिन करो एक डिवाइस है, डिवाइस के लिए फ्यूज वायर चाहिए सिर्फ। कभी कभी डिवाइस में भी लगा होता है, हैव यू सीन? वो जो जंक्शन बॉक्स होता है उसमें भी फ्यूज होता है छोटा सा, या फिर फ्रिज में ऑलरेडी उसका खुद का फ्यूज होता है। समझ में आ रहा है ना? वॉशिंग मशीन में भी क्या होता है, फ्यूज होता है। तो जो कॉस्टली डिवाइसेस होते हैं उसमें छोटा सा फ्यूज लगा देते हैं, सो दैट अगर कभी भी अब्रप्टली हाई करंट गया तो क्या होगा, फ्यूज खराब होगा, वो डिवाइस खराब नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? लेकर जाएंगे मैकेनिक के पास तो वो सिर्फ फ्यूज चेंज करके दे देगा। ओवरऑल एवरीथिंग विल बी व्हाट, सेफ। सो इमेजिन एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है, इमेजिन करो 300 ओम्स है। अब इस डिवाइस के लिए मुझे फ्यूज चाहिए, फ्यूज वायर चाहिए। तो कितने एम्प का फ्यूज वायर लगेगा? तो बिकॉज फ्यूज वायर एम्प में मापते हैं तो इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज माय करंट? I is equal to V by R. So V by R will be how much? 220 divided by 300, 0 gets cancelled, 15s are 11s are, so 11 divided by 15 हुआ, right? 11 by 15, तो 11 by 15 means पॉइंट में आंसर मिलेगा, यस सर नो? तो 11 divided by 15, 0.015, 6 90, यस सर नो? 15 5 से कितना हुआ? 75, 15 6 90, 15 7 105, यस सर नो? तो कितना मिला आंसर? 0.7 एम्पियर। तो बिकॉज मेरा करंट जो है 0.5 एम्पियर है, मैं कौन सा फ्यूज वायर सेलेक्ट करूंगा इसमें? वेरी गुड, फॉर आई विल गो फॉर 1 एम्पियर, आई विल नॉट गो फॉर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर, बिकॉज 2 एम्पियर मतलब 2 एम्पियर करंट में खराब हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? नियरेस्ट लेना है, समझ में आ रहा? नियरेस्ट फ्यूज वायर कनेक्ट करें। ओके, इसी को इंस्टेड ऑफ 300, ओके, मेक इट 100 और मेक इट 50। 220 को ना 200 कर दो, इसको 50 कर दो। अब देखो कितना मिलेगा आंसर, 200 by 50, so it becomes how much? 4 is answer, right? 4 ampere, yes or no? So which wire I have to select now? 4 ampere। पर इमेजिन मुझे अगर 3.5 मिला है तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? 4 एम्पियर। ओके, नियरेस्ट ज्यादा वाला, कम वाला नहीं। फॉर एग्जांपल आई गॉट 3.5, आई एम सेलेक्टिंग 3, तो इट विल वर्क? वो वर्क नहीं करेगा। समझ में आ रहा ना? तो नियरेस्ट चाहिए, थोड़ा सा बढ़ के रहे तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। बी केयरफुल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इन दी मल्टीपल चॉइस, ओके, एमसीक्यू बेस्ड। ओके, लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट में कुछ ज्यादा है नहीं, बस इतना याद, इतना समझ जाओ, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको मेजर करेंगे पावर में, किसमें? एनर्जी। ओके, एनर्जी, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, क्या कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ, इस तरह से उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं एनर्जी। ओके, तो बेस्ड ऑन एनर्जी वी कंज्यूम दे विल पुट दी व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इसका भी एक क्या है, यूनिट है। वो एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं उस एनर्जी का यूनिट है kWh। क्या यूनिट है? kWh मतलब क्या? वैट, किलो वैट आवर। तो यूनिट क्या, एक्चुअली ये एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू वैट क्या होता है, पावर, एनर्जी ये आवर क्या होता है, टाइम, P इंटू टी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? P इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम विल गिव मी व्हाट, एनर्जी। ओके, तो यही, इसी को पावर को हम लोगों ने लिखा है किसमें, किलोवाट में। ओके, किलोवाट मतलब क्या, वैट का ही एक दूसरा फॉर्म। फॉर एग्जांपल यू नो हाउ टू कन्वर्ट वैट इनटू किलोवाट, ग्राम इनटू किलोग्राम बाय डिवाइडिंग व्हाट, 1000। ओके, जो भी वैट है उसको अगर तुम डिवाइड करोगे किससे, 1000 से, इट विल कन्वर्ट इनटू किलोवाट। You just remember kWh. 1 kWh is 1 commercial unit. 1 say commercial
यूनिट, याद रखना 1 kWh इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट। रिपीट करो, 1 kWh इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट। अब एक यूनिट का कुछ अमाउंट होता है, जैसे 5 रुपीज, 7 रुपीज, 3 रुपीज, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट मंथ में ओके 200 यूनिट्स आप इस्तेमाल किए, तो 200 यूनिट यूज हुआ है। एक यूनिट का कितना रुपया था, 5 रुपया, तो 200 यूनिट का कितना होगा, एक यूनिट का 5 रुपीज था, तो 200 यूनिट का 200 इंटू 5 कर देंगे, तो 5 0 0, 5 0 0, 5 2 10, इट बिकम सो मच 1000 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का क्या आएगा, बिल आएगा। समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टूड। सो 1 kWh इज इक्वल टू 1 कमर्शियल यूनिट। kWh में है क्या, किलो वाट आवर है। अब वो जो भी क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन से आपको क्या निकालना है, वैट निकालना है, उसको कन्वर्ट करना है किसमें, किलो में, किलो वैट हो गया, मल्टीप्लाई कर देना है टाइम से, कितना बन जाएगा, किलो वैट आवर बन जाएगा। ओके, इधर जो नंबर मिलेगा उतना यूनिट होगा, एक यूनिट का कितना रुपया, उसे मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट द टोटल अमाउंट। ओके, क्लियर, विल टेक द क्वेश्चन, देन विल अंडरस्टैंड। See, listen here, what question they have given, page number 130, 12.13, 12.13 क्या है, an electric refrigerator 400 watt। an electric refrigerator मतलब एक फ्रिज है जिसका पावर कितना है, 400 वैट। समझ में आ रहा है, फ्रिज का पावर कितना है, 400 वैट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, मतलब टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स दिया है पर डे, समझे। ऑपरेटेड फॉर 30 डेज, कितने दिन तक काम कर रहा है, टोटल 30 डेज तक काम कर रहा है। ओके, तो बस इतना लिख दो, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज। ओके, आया समझ में। at ₹3 per kilowatt hour, at rupees, okay, what is the cost of energy operate at rupees per 3 kilowatt per hour, मतलब क्या, एक यूनिट कितना रुपए है, 3 रुपीस है, और एक यूनिट का मतलब 1 kWh इज इक्वल टू 3 रुपीस। एक kWh अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कितना रुपए बिल आएगा, 3 रुपया। अब देखेंगे टोटल कितना यूनिट्स होते हैं, इन अदर वर्ड्स टोटल कितने kWh होते हैं, राइट। तो आई राइट एनर्जी इज इक्वल टू ओके P इंटू टी। तो पावर निकालो पहले, पावर कितना दिया है, 400 वैट दिया है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, किलोवाट में, तो 400 डिवाइडेड बाय 1000 किलोवाट हो गया, किलोवाट इसका, सॉरी वैट कन्वर्टेड इनटू किलोवाट, 2020 गेट्स कैंसल, 4 by 10 becomes how much, 0.4 किलोवाट। तो पावर किसमें आ गया, किलोवाट में आ गया, कितना 0.4 किलोवाट। I'll write kW into time, how much time there, see 8 hours per day for 30 days, हर रोज 8 आवर, तो 30 दिन का कितना होगा, 8 इंटू 3, 30 इंटू 8, ये सर नो, समझ में आ रहा है ना, एक दिन का 8 घंटा, 2 दिन का 8 इंटू 2, 3 दिन का 8 इंटू 3, उसी तरह 30 दिन का 8 इंटू 30, राइट 30 इंटू 8, तो 8 0 0, 8 3 24 होगा, राइट, 8 8 16 8 24 कितना हुआ, 24, 240 घंटा हुआ, 240 आवर्स। तो आई विल राइट हियर 240 आवर्स। सो ये क्या हो गया, ये 0.4 इंटू 240 kWh हो गया, kWh हो गया ना, kW इधर, h का इधर, किलोवाट आवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 240 इंटू 0.4, 4 0 0, 4 4 6 कैरी 1, ओके 4 2 8 9, एक नंबर के बाद पॉइंट है 96, मतलब क्या बना 96 kWh। एक kWh का 3 रुपए था, ये सर नो, तो 96 kWh का कितना होगा, 96 इंटू, समझ में आ रहा है ना,
नहीं तो ऐसे समझो, एक पेन 3 रुपीज है, 96 पेन लेना है तो कितने रुपए दोगे उसको? 96 इंटू 3 करोगे, यस सर नो? सो टोटल कॉस्ट, यू कैन राइट टोटल कॉस्ट, okay, is equal to 96 into 3, it becomes 288, right? 288 rupees. What it now? Any doubt? तो इस तरीके का क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं, तो कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद रख लियो, क्या एक यूनिट क्या होगा? एक kWh होगा। 1 यूनिट इज नथिंग बट 1 kWh, ओके? वो पर यूनिट का कॉस्ट देगा, तो जितना भी kWh निकलेगा उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल बिल कितना आएगा वो पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, दिस कंप्लीट द चैप्टर, ओके, इलेक्ट्रिसिटी।